गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है एडू पैराडाइज। एंड आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं यार, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, this is the chapter which we are going to discuss today. Before starting, if you don't know me, then let me give you my brief introduction. My name is, as you can see on the screen, I am your chemistry mentor Kirti Sharma. I have been teaching for like 6 years and here are like rest of the details you can see on the screen. बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हमारा आज का कॉन्सेप्ट। ओके, so yeah, here you can see the periodic table in front of you. Before starting, like the very first thing जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए वो है कि यार पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के कौन से होते हैं और एफ ब्लॉक के कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली बात करो ग्रुप नंबर 1 एंड 2 की, इन दोनों ग्रुप्स की, तो बच्चे ये आते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12 ये कौन से होते हैं, these are your D block elements। और अगर आप जनरली बात करें तो D block elements को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ओके, देन फ्रॉम ग्रुप 13 to 18 वी हैव P block elements। ठीक है ना, यहाँ पे वी हैव P block elements और बेसिकली आप मान सकते हो विच आर लाइक situated at the bottom of the periodic table, they are simply your F block elements। okay? तो देखो D block elements हम लोग बेसिकली डील करने वाले हैं यार D block elements एंड F block elements के साथ। उससे पहले लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या होता है। S block elements में क्या होता है, when the last electron, ठीक है, जो भी हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, when it enters into the S subshell, in that case it is simply called as S block element। अगर आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो D सबशेल में आया तो D ब्लॉक एलिमेंट, सिमिलरली P में गया तो P ब्लॉक एलिमेंट, F में गया तो F ब्लॉक एलिमेंट, एज सिंपल एज दैट। इससे सॉरी, इससे ज़्यादा और कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, so this is the basic thing। okay, this is the very basic thing। so here is the like introduction of D and F block elements जो आपको पता है। D block elements I have already made you understand। apart from that, आप D block elements को transition elements क्यों बोलते हो यार? आपने देखा था कि पहले S block के elements थे, बीच में D block के elements थे और फिर P block के elements थे, राइट? सो जब आप S से P की तरफ जा रहे हो तो यू आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम S to P via D, right? So that's why they are called as transition elements। This is one of the simplest definition। Another definition of transition elements, okay, I would say that not all the D block elements are termed as transition elements। आप सभी के सभी D block elements को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हो। ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। कूल। अब आप बोलोगे तो कौन से वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स को यार ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं? सो ऐसे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जिनमें जो डी सबशेल है, इट इज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड, वो पूरी तरह से फिल्ड नहीं है, उसको आप क्या बोलते हो यार? इट इज़ सिंपली कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसीलिए जिंक, कैडमियम और मर्करी, यहाँ पे लिखा भी था आई बिलीव कहीं पे, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, राइट? दीज आर ऑफ कोर्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट दे आर नॉट टर्म्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाई? because they have full D10 configuration, okay, maximum number of electrons which can be accommodated in the D subshell 10, right? So they have full D10 configuration, that is why they are not termed as transition elements, they are simply called as D block elements। but in order to like generalize, okay,
But in order to generalize, we say that yes, D block elements are transition elements. Okay, so I believe that both the definitions are clear to you. जो अभी हमने बातें डिस्कस करी हैं, सेम बातें यार यहाँ पे लिखी हुई हैं. You can just simply go through them. I will stay out of the screen for a while so that you can just see, or you can just quickly take a screenshot. Okay, this is the like main scene. So you can see here the D block of the periodic table contains elements from groups 3 to 12 in which the orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods. Moreover, अगर हम D block elements की बात करें, so we have 4 D series. We have 4 D series. ठीक है, कौन कौन सी होती हैं यार? 3D, 4D, 5D and 6D. Okay, these are the 4D series जिनमें हम सारे के सारे D block elements को define करते हैं. Okay, the transition elements are those elements which have incompletely filled D subshells in their ground state or any of their oxidation state. ये बात हम लोग already discuss कर चुके हैं, right? Copper, silver and gold are transition elements, transition metals, because in their commonly occurring states they have partly filled D subshells. ठीक है, क्योंकि अगर आप उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो तो समटाइम्स दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटल, तो आप उसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हो. बट जिंक, कैडमियम और मर्करी ऑफ ग्रुप 12 यहाँ पे they don't have partly filled D subshell in their elementary state और commonly occurring oxidation state किसी में भी नहीं होते. इसीलिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यार जिंक, कैडमियम और मर्करी ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं. ओके, सो आई बिलीव दैट दिस थिंग इज क्लियर. लेट्स मूव अहेड क्विकली. ओके, सो हियर यू कैन सी द 4 D series, right? 3D, 4D, 5D and 6D. So the very first thing is that you remember this 3D series at least. Okay, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Okay, make sure at least you remember this. Okay, तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, जो मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, मैं आपको साथ के साथ बताने वाली हूँ इस चैप्टर में कि आपसे मैक्सिमम किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 विच विल बी डेफिनेटली आस्क्ड. लाइक 90% चांसेस हैं कि यार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. ठीक है, सबसे ऊपर आप देख सकते हो कि यार आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, राइट? इट इज़ n-1d 1 to 10 ns 1 to 2. ओके, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. n क्या है यहाँ पे? जो भी आपका नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल है, राइट? 1 2 3 4 जो भी है, वो जो भी आउटर मोस्ट शेल का नंबर है, दैट इज n हियर. ओके, सबसे पहले तो 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए तुमको ये बात पता होनी चाहिए, the general electronic configuration of D block elements, n-1d 1 to 10 ns 1 to 2. प्लीज़ रिमेंबर दिस. 1 मार्कर में आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, चलो शुरू से शुरू करते हैं. अगर देखो आप बात करो यार स्कैंडियम की, ठीक है, अगर आप बात करो स्कैंडियम की तो उसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो, ठीक है, आर्गन तक तो फुलफिल्ड है, बचे कितने? 19 20 21, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे. ठीक है, 2 आपने 2 में कर दिए, 1 1 में, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? ऑर्गन टिल 18 एंड देन 4s2 3d1. ठीक है, सिमिलरली टाइटेनियम की 4s2 3d2, वेनेडियम की 4s2 3d3, राइट? अभी बात आती है यार क्रोमियम की. ठीक है, अभी बात आती है क्रोमियम की. सो क्रोमियम में अगर आप जनरली इसको फिल करते जैसे हम पिछले 3 एलिमेंट्स में करते आए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको करना चाहिए था 4s2, राइट? आपको करना चाहिए था 4s2 एंड 3d, 4s2 3d. इट वॉज वेट फॉर वाइल. हमारे पास स्कैंडियम में क्या था? जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड यार, स्कैंडियम में क्या था हमारे पास? 4s2 3d1 3d2 3d3 3d4 होना चाहिए था, राइट? 3d4 होना चाहिए था. बट
एक्चुअल में हमारे पास क्या है, इट इज़ 4s1 3d5। ऐसा क्यों कि एक इलेक्ट्रॉन s सब शेल में से उठकर और d सब शेल में चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो यार आपसे पूछा जाता है, define the electronic configuration of chromium and copper. Okay, chromium is here, copper is here. ठीक है, write their electronic configuration and why the configuration of these elements are different. So the reason is that कि यार ऐसे होता है कि जब भी आपके पास fully filled या फिर half filled subshells होते हैं, they are comparatively very stable. Okay, तो इसीलिए देखो, जब S में से एक इलेक्ट्रॉन उठ के D में चला गया तो क्या हुआ यार, ये भी हाफ फिल्ड हो गया और ये भी हाफ फिल्ड हो गया। सो इन दिस वे इट बिकम्स मोर स्टेबल। ओके, सो दैट इज़ वाई बच्चे जो कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रोमियम की, वो होती है 4s1 3d5। वो क्या होती है? 4s1 3d5। प्लीज़ रिमेंबर, ऑर्गन 4s1 3d5। और अगर आप बात करो बच्चे कॉपर की, तो उसकी होती है 4s1 3d10। एक्चुअली में होनी चाहिए थी 4s2 3d9। एक्चुअल में क्या होनी चाहिए थी? 4s2 3d9, जैसे हम फिल कर रहे हैं। बट अगेन यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके d में भाग गया। क्यों? ताकि जो s है वो हाफ फिल्ड हो जाए और जो d है वो फुली फिल्ड हो जाए, एंड इन दिस वे इट विल बिकम मोर स्टेबल। ओके, सो इंस्टेड ऑफ दीज कॉन्फ़िगरेशन, ये नहीं होती है, ठीक है ना, जो भी लिखी हुई है ये नहीं होती है। एक्चुअल में क्या होती है देख लो। अगर हम बात करें सबसे पहले क्रोमियम की, तो बच्चे क्रोमियम की क्या होती है? आर्गन टिल 18, ये तो फिक्स हो गया। उसके बाद क्रोमियम इज 4s1 3d5, ठीक है। एंड नंबर 2, इफ वी टॉक अबाउट कॉपर, so copper is argon 4s1 3d10. It is 4s1 3d10. And if you look at their atomic number, क्रोमियम का कितना होता है बच्चे? 24, और कॉपर का कितना होता है? 29. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, आई एम टेलिंग यू अगेन, इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा है। सो मेक श्योर दैट यू नो द स्पेशली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर एंड द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, लेट मी गो एंड चेक समथिंग। ओके, कूल, लेट्स मूव अहेड क्विकली। अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। पहले टाइप का तो क्या था, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद देखो, आपको पता है देयर आर सर्टेन ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ विच आर गिवन टू यू, राइट। कुछ आपको सर्टेन प्रॉपर्टीज़ और ट्रेंड्स गिवन हैं। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, आपको वो ट्रेंड या फिर आपको वो प्रॉपर्टी बता दी जाएगी, ठीक है। आपको एग्जामिनर खुद से बोलेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ना ये ट्रेंड होता है, और आपसे वो उसका रीज़न पूछेगा। दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड टू यू फॉर श्योर, ठीक है। इस चैप्टर में हम चीज़ें उसी तरीके से कवर कर रहे हैं जैसे आपसे एग्जामिनर पूछेगा। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, जब भी आप एटॉमिक रेडाई या आयनिक रेडाई की बात करते हो इन द सीरीज, ओके, अगर आप इस सीरीज में बात करते हो, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। फर्स्ट सीरीज के थ्रू आई विल मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग। यहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बच्चे वो लिख दी थी, ठीक है। अभी देखो, अगर यार आप इस सीरीज की बात करो, ठीक है, तो जब आप स्कैंडियम से मैंगनीज जाते हो तो ऐसा देखा जाता है कि साइज़ डिक्रीज़ होता है, ठीक है। जब आप मैंगनीज से आगे आप कह सकते हो लाइक निकल कॉपर तक जाते हो तो साइज़ ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, और जब आप कॉपर से फर्दर जिंक की तरफ जाते हो तो साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। सो व्हाई इज़ दिस ट्रेंड? ऐसा क्यों होता है? तो देखो, किसी
इस पर्टिकुलर केस में साइज को मेंटेन करने वाले दो मेजर फैक्टर्स होते हैं. देयर आर टू मेजर फैक्टर्स. नंबर वन फैक्टर is your shielding effect or your screening effect. चलो let me tell you what is screening और shielding effect. देखो, अगर यहाँ पे आपको समझाया जाए, let me here is the shape, ठीक है, works, alright, something like this, ठीक है. एक और बना लेते हैं, अच्छा रहेगा, right? oops, just a moment, yeah, alright, ठीक है. तो यार जो सबसे पहला फैक्टर है वो है शील्डिंग इफेक्ट. वो क्या फैक्टर है आपका? शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है. शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है कि यार जो इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज लाइक दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, जो इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं. ओके, वो इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक को रिपेल करते हैं. ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज डेफिनेटली एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ओके, सो द वन फैक्टर इज यार स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. वो क्या है? दैट इज योर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. अनदर फैक्टर विच कम्स इनटू द पिक्चर इज दैट कि यार जो ये न्यूक्लियस है इसका जो स्टॉपोजिंग फैक्टर है, ठीक है, जो ये न्यूक्लियस है ये इवन जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करता है. न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो देयर इज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, राइट, दीज टू फैक्टर्स. अब आप बोलोगे कि यार दीज टू आर अपोजिंग फैक्टर्स, राइट, दीज टू आर अपोजिंग फैक्टर्स. इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर ज़्यादा है तो यार रिपल्शन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो साइज बढ़ेगा, राइट, साइज जो है वो इंक्रीज होएगा. सही है. सो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर ज़्यादा है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन से तो जो ओवरऑल साइज है वो बड़ा हो जाएगा, राइट. अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के ऑलमोस्ट बराबर है तो जो साइज है वो भी ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा. अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से तो जो साइज है वो कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, राइट. सो दिस इज़ लाइक द बेसिक सीन. ओके, दिस इज़ लाइक द बेसिक फंडा हियर. तो अभी चलते हैं पीछे की तरफ. तो देखो, जैसा कि अभी हमने बात किया कि यार जो स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक आप कह सकते हो, राइट, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक यार जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है वो कम होती है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन से, तो जो साइज़ है वो कम हो जाता है. अगर आप मैंगनीज से ऑलमोस्ट निकल कॉपर तक देखो तो जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, मतलब कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. ठीक है, और जब आप इससे आगे जाते हो जिंक की तरफ तो जो साइज़ है वो बढ़ जाता है. अब रीज़न इसका क्या हो सकता है कि देखो, जिंक के पास फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, जिंक हैज़ फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन, जिसके वजह से उसके पास लाइक पूरे D सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं फुल. तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल ज़्यादा करेंगे, राइट, और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपेल करेंगे तो जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा. सिंपल. सो दिस इज़ द सीन. तो देखो, यही ट्रेंड है जो हमारे पास गिवन है. द एटॉमिक रेडाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बट दिस डिक्रीज इन एटॉमिक रेडाई बिकम स्मॉल आफ्टर मिडवे, राइट. मिडवे में वो जो चेंज है वो बहुत कम हो जाता है. जो हमने देखा था कि ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, मतलब कि जो चेंज है वो बहुत कम होता है. सो हियर इज़ द रीज़न जो अभी मैंने आपको समझाया है, शील्डिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन. जस्ट गो थ्रू इट वंस,
and you will be done. Okay, I have already made you understand the reason behind it. Please go through them. Okay, समझाना मेरा काम था. I've already done that. At the end of each period, there is slight increase in atomic number. Increase in atomic size, I would say, right? Slight increase in atomic radii कर लो, पता है इसको क्यों? एटॉमिक नंबर तो ज़्यादा है, एटॉमिक रेडियस भी तो ज़्यादा हो रहा है, राइट? बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ज़्यादा है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड. ओके, नेक्स्ट, द एटॉमिक रेडाई इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप. एटॉमिक रेडाई इंक्रीज करता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं. अब ऐसा क्यों होता है? अब देखो, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है यार. आप डाउन द ग्रुप जाओगे, शेल्स ऐड होंगे और अल्टीमेटली जो साइज़ है वो इंक्रीज करेगा. इजी रखते हैं अभी इसको. इससे आगे अभी हम और देखने वाले हैं योर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, कि उसमें क्या होता है. ये देखो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी अभी हम देखेंगे. ठीक है, ये चलो अगर मैं आपको समझा ही दूँ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो देखो सबको पता है यार. आप सबसे पहले 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, फिर 5D सीरीज़ ऐसे भरते हो, राइट? दैट्स हाउ यू फिल दैट, राइट? 3D से 4D जाने पे साइज इंक्रीज करता है. शेल्स जो है वो, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं. सेम इज़ वैलिड जब आप 4D टू 5D जाओगे तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, साइज इंक्रीज होना चाहिए. बट साइज जो है 4D से 5D जाते हुए वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. ऐसे क्यों होता है? क्योंकि यार 4D से 5D जब आप जाते हो तो पहले आपको 4F सीरीज़ भरना होता है. पहले आपको 4F भरना होता है. और अभी जो हमने इससे पहले यार स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा था ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट या आप कह सकते हो शील्डिंग इफेक्ट, है ना? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के, इनर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है. ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट? दिस इज आवर स्क्रीनिंग इफेक्ट. ओके, तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा एस सब शेल का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है और फिर एफ का होता है. ठीक है, तो 4F वहाँ पे प्रेजेंट है. 4F का बहुत पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है. इसका बहुत ही पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है. ठीक है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है रिपेल नहीं करता. इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम रिपेल करते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यार वो बढ़ जाता है. जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत लगा के खींचेगा, क्योंकि कोई इसको दूर तो भेज नहीं रहा रिपेल करके, राइट? तो इसके वजह से जो साइज है वो थोड़ा सा काउंटर कर जाता है. मतलब कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से बढ़ना चाहिए था, पर 4F शेल्स के इंटरवीनिंग के वजह से, क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है 4D से 5D जाने पे. सो दिस इज द सीन जिसको आप बोलते हो लैंथेनॉइड या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, this question can be directly asked to you. Define lanthanide contraction and its consequences. Directly आपको एक question even 5 marks में जो आपका case study वाला question है उसके terms में भी पूछा जा सकता है, या फिर 3 मार्कर में आपसे पूछ लेंगे, 2 मार्कर में आपसे पूछ लेंगे define lanthanide contraction and give its 2 consequences or give its consequences. So make sure that you have covered this. सबसे पहली चीज़, 3 ही चीज़ें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं. नंबर 1, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर. नंबर 2, टाइप ऑफ क्वेश्चन. मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर आपको प्रॉपर्टी या ट्रेंड खुद से बताएगा और बताएगा, बोलेगा इसका रीज़न बताओ. और जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? डिफाइन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये आपसे पूछा जा सकता है. सो मेक श्योर दैट यू नो दीज थिंग्स. ओके, लेट्स मूव अहेड. So same is the trend for ionic radii. I'll just move out of the screen so that you can just quickly have a glance whatever is written here. Okay, आगे चलते हैं.
एटॉमिक साइज आप देख सकते हो, डिपेंड ऑन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, हम लोग देख चुके हैं. आयनिक एंड एटॉमिक रेडाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्मॉलर दैन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी हम देख चुके हैं. ठीक है. स्कैंडियम टू क्रोमियम रेडियस डिक्रीज करता है, मैंगनीज टू निकल ऑलमोस्ट सेम रहता है, कॉपर टू जिंक रेडियस इंक्रीज होता है. रीज़न हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. आगे बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की. मेटालिक कैरेक्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कि हमने देखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी हमारे सिलेबस में है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स टेक पार्ट इन द कॉम्प्लेक्स compound formation, right? And the metallic character that your transition elements have a metallic character. Why so? Because they have large number of unpaired electrons. जैसे कि एग्जामिनर आपसे या तो एटॉमिक रेडाई पूछ लेगा या पूछेगा why transition elements show metallic character, या फिर बोल देगा why they form कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो इन दिस वे कि आपको उसका रीज़न बताना होगा. ठीक है. एटॉमिक रेडाई का रीज़न पता चल गया हमको. ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, दे हैव हाई डिमिटी, हार्डनेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड लस्टर. इसका रीज़न क्या है? The metallic character is due to their relatively low ionization enthalpies and number of vacant orbitals in the outermost shell, and there are more number of unpaired electrons, right? This is the reason. The hardness of their metal suggests the presence of strong bonding due to overlap of unpaired electrons between different metal atoms. Therefore, strong bonding due to clear कि लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, राइट. वेकेंट ऑर्बिटल्स ज़्यादा हैं क्योंकि ऑफ कोर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. इसका रीज़न कंपैरेटिवली स्मॉलर साइजेस ऑफ मेटल आयंस, कि जो मेटल आयन का साइज है यार वो छोटा होता है. हाई आयनिक चार्जेस, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देर इज़ एन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. इसीलिए ईजीली ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं. ये प्रॉपर्टीज़ यार हम जल्दी जल्दी सीखेंगे, जो जो लिखा हुआ है उसको डिस्कस करते हुए जल्दी जल्दी से. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो यार जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है. और ऐसा देखा जाता है कि जब आप मिडिल में आते हो, राइट, ये आपकी पूरी सीरीज़ है, जब आप मिडिल में आते हो, जब आप मैंगनीज बीच में आए, ऑलमोस्ट बीच से में आए, तो इट शोज द मोस्ट रेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ओके. जो मैंगनीज है इट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +7. दैट्स अमेजिंग, राइट. सो या this is because of participation of inner electrons in addition to the outer ns electrons, because the energy of ns and n-1d. इसका रीज़न क्या है बच्चे कि ns की और n-1d इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है. So this is the reason the elements which give the greatest number of oxidation states occur in or near the middle of the series. ये बात भी हमने डिस्कस कर ली है. सो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होते हैं. इसका रीज़न क्या है कि यार ns और n-1d इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है. ओके. दिस इज़ द रीज़न. फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू यू कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कलर्ड आयंस. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन. किसके वजह से होता है यार ये? इट इज़ बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन. अब डी ट्रांजिशन क्या होते हैं? जब भी अगर अब यार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आता है तो डी ट्रांजिशन को हाईलाइट कर देना या उसको बेसिकली अंडरलाइन कर देना कि टीचर को देखते ही समझ में आ जाएगा दैट यू नो द रीज़न. ऑलराइट. सो या यू कैन सी हियर दैट कंपाउंड्स और आयंस, ये पॉइंट्स में मैंने लिखा है सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके. Compounds or ions of many d block elements or transition metals are colored. ठीक है. और एग्जामिनर आपको इसके आगे क्वेश्चन बना देगा why. ठीक है. एग्जामिनर इसके आगे क्वेश्चन लिख देगा why. so बताओ, आप बताओ यार ऐसा क्यों होता है. तो ऐसा किस लिए होता है? लेट्स सी. यहाँ से होता है आपका आंसर शुरू.
आप इसको प्रॉपरली एज इट इज एक पैराग्राफ में लिख सकते हो. ओके, मैंने पॉइंट्स में लिखा है ताकि आपको ईजियर हो, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अगेन रीजन क्या है? मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d ऑर्बिटल. ठीक है ना. द ट्रांजिशन मेटल्स हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड n-1d ऑर्बिटल. ये तो है सबसे पहली बात, ये तो हमको पता ही है यार, इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट. अब इसके होने से क्या होगा? The energy required to promote d orbitals, one or more electrons within the d orbitals involving d transition is very low. ठीक है. The energy changes, this is energy changes for d transition. जो d transition के लिए energy required होती है, इट इज़ अंडर द विजिबल रीजन. वो किस रीजन में एग्जिस्ट करती है? विजिबल रीजन में. विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करती है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. आप लोग पढ़ चुके हो फिजिक्स में, राइट? देयरफॉर ट्रांजिशन मेटल आयंस एब्जॉर्ब द रेडिएशन इन द विजिबल रीजन एंड अपीयर कलर्ड. कि जो एनर्जी डी ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी जो है विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करती है, एंड दैट्स व्हाई दे सिंपली अपीयर कलर्ड. Color of ions of d block elements depends on the number of unpaired electrons in the d orbital. The ion having, there are spelling mistakes na. The ion having equal number of unpaired electrons have similar color. Okay, and the color of metal ion is complementary to the color of the radiation. So this is the reason. Metallic character हम discuss कर चुके हैं already. Density. If you talk about the density, so they are quite dense. जो सबसे ज़्यादा dense होता है, that is your osmium, है ना? Osmium and iridium, these are the most dense elements. The atomic volume of transition elements is very low compared to s block elements. Their density is comparatively high. Osmium and iridium have the highest density in the d block elements. All the d block elements except scandium, indium and titanium have density greater than 5 gram per centimeter cube. All right. Rest of the things you can see कि density का भी वही trend है जो atomic size का है. All right. Formation of alloys. तो alloy formation होती है. अब ऐसा क्यों होता है? इसका एक अलग reason है. That is, the reactivity of transition element is very less and their sizes are almost similar. है ना कि transition elements का जो size है वो almost similar है. तो अगर आप एक एटम के बजाय दूसरा एटम रख दोगे बीच में, तो उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो वो alloy बन जाएगा. easy. Almost similar. Because of this, a transition metal atom in the lattice can be easily replaced by another transition metal atom and hence they have maximum tendency to form alloys. कि एक एटम हटा के दूसरे मेटल का एटम भर दिया और आपका अलॉय बन गया. ईजी. ठीक है. बाकी आप देख सकते हो. और ब्रॉन्ज जो है किससे बनता है? गन मेटल, बेल मेटल, एल्निको, टाइप मेटल, ब्रास, नाइक्रोम. आई विल कम आउट ऑफ द स्क्रीन so that you will be easily able to see the screen. You can take a screenshot as well. Telegram link आपको already given है. If you want the notes, you can join the Telegram group and it would be easy, right? Catalytic property, that they are used as catalysts. जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, they are used as catalyst क्योंकि एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एंड देर आर लाइक फ्री वैलेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, तो इससे जो है रिएक्शन वो बहुत ईजीली हो जाता है. Transition elements show catalytic properties because of their variable valency and free valencies on their surfaces. As I told you, the catalytic properties exhibited will be greater when the transition elements are in the powdered state. उससे क्या होगा? Surface area increase हो जाएगा. This is because of the greater surface area in the powdered state. Transition metals and their compounds exhibiting catalytic properties in various processes. तो यार ये आपके NCERT में भी गिवन है, तो ये तुमको याद होना चाहिए. ये 1 मार्कर में माइट बी द केस कि आपसे पूछ लिया जाए. ठीक है. V2O5 vanadium oxide is used in contact process in the formation of, in the manufacture of H2SO4 sulfuric acid. All right. Nickel is used in hydrogenation of oils.
FeSO4 is used in the oxidation of benzene with H2O2. Copper is used in the dehydrogenation of alcohol. TiCl4 is used as a catalyst in vinyl polymerization. So just go through it quickly, take a screenshot, and then we will quickly move ahead. Okay. Here, formation of interstitial compound. Okay. अब interstitial compounds कि यार जो भी एटम्स के बीच में खाली जगह है वहाँ पे कोई और एटम भर दो तो लाइक इट्स एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड. द ईजीएस्ट डेफिनेशन, transition elements react with elements like nitrogen, hydrogen, boron etc. to form interstitial compounds. The smaller sized ions जो होते हैं they get trapped in between the interstitial spaces. It's like कि अगर suppose metals ऐसे लगे हुए, ठीक है, जो transition elements है उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, ठीक है, तो जो ये ऐसे वाली जो छोटे एलिमेंट्स हैं जिनका साइज और छोटा है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बोरॉन है, तो इसके जो एलिमेंट उनको ऐसे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फंसा देते हैं. सो दीज आर योर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. ओके, सो यू कैन सी हियर the smaller sized atoms get trapped in between the interstitial spaces of the metal lattice. These interstitial compounds are non-stoichiometric in nature, so they cannot be given any definite formula. Weak van der Waals forces of attraction is responsible for holding smaller sized elements in interstitial spaces of the transition elements. ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकली इनर्ट होते हैं नेचर में, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हार्ड होते हैं एंड कंडक्टिविटी एग्जिबिटेड बाय देम इज सिमिलर टू द पेरेंट मेटल. सो ईजी राइट, आपको बहुत ईजीली यार मैं समझा रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ वे कि आपको क्विकली पता चल जाए कि यार इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपको ये करना है. बिकॉज जितना आपको पढ़ना था डिटेलिंग वाला यू हैव ऑलरेडी डन दैट. ओके, सो हियर इज़ अ क्विक रिकैप कि यार आपसे क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा. ओके, यस, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यार आप देख सकते हो, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हो, ठीक है. एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f 0 to 14 n-1 d 0 to 1 ns 1 to 2. ओके, एंड सेपरेटली बॉटम पे प्लेस होते हैं. बिगिनिंग में ही हमने देख लिया था. लैंथेनाइड्स आप किसको बोलते हो, जो लैंथेनम के बाद शुरू होते हैं. ओके, they are called lanthanides because the elements of the series are chemically similar to lanthanum. These are reactive elements. ठीक है, properties of lanthanides आप देख सकते हो, very basic, I'm not going to discuss it with you. Good conductors of heat and electricity, melting points, soft metals exposed to air, their brightness reduces rapidly and their color dulls. Some basic properties you can see here. Then the last point of the day, that is lanthanoid contraction, that we have already discussed. Extremely important. इसको double star mark कर लो because it is extremely important. होता क्या है हम already समझा चुके हैं कि जब आप 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ जाते हो, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, मुझे लग रहा है बहुत देर से बोल रही हूँ. जब आप 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ जाते हो तो 5D से पहले आपको कौन सा फिल करना होता है, 4F सबशेल फिल करना होता है, राइट. और F वाले का जो स्क्रीमिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा पुअर होता है. ओके, it has got the most poor screening effect, F orbital. ओके, मतलब कि जो इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही कम रिपेल करते हैं. इसके वजह से जो आपका व्हाट वी से कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, द मोर प्रिसाइज वर्ड वुड बी, जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज़ होता है एंड एज अ होल आप बोल सकते हो कि साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है. जो साइज़ शेल बढ़ने के हिसाब से बढ़ना चाहिए था वो कम हो जाता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से. सिंपली आप इसको बोलते हो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज़ इट. ओके,
you can see the gradual decrease in the atomic and ionic size of lanthanoids with an increase in atomic numbers is called as lanthanide contraction. The gradual decrease in the size of the ions and atoms of the lanthanoids with increasing atomic numbers from lanthanum 57 to lutetium 271 is termed as lanthanide contraction. For every consecutive atom, basically जब आप 4D से 5D जा रहे हो, for every consecutive atom, the nuclear charge can be more positive by a single unit, right? Effect nuclear charge बढ़ेगा, atomic number बढ़ेगा तो, followed by the corresponding increase in the electron count present in 4f orbitals surrounding the nucleus. आ गए 4f orbitals, okay? The 4f electrons imperfectly protect each other from the increased positive charge of the nucleus. Basically, poor screening effect. This results in a steady rise in the effective nuclear charge. क्योंकि poor screening effect है. इसका क्या मतलब है? Poor screening effect. Let me write with the help of a pen. It means poor screening effect. यहाँ पे आप ये बात भी लिख सकते हो. Because of poor screening effect, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है. स्टेडी राइज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्टिंग एवरी इलेक्ट्रॉन एज द लैंथेनॉइड एलिमेंट प्रोग्रेस, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन द आयनिक एंड एटॉमिक रेडाई. दिस इज सिंपली लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ओके, दिस कथा इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. सेम क्वेश्चन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो समटाइम्स आपसे इस फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि जिरकॉनियम से जब आप हॉफनियम की तरफ जाते हो, बेसिकली ये 4D सीरीज़ का एलिमेंट है, ये 5D सीरीज़ का, कि जब आप जिरकॉनियम से हॉफनियम जाते हो तो एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों होता है या डिक्रीज हल्का सा क्यों करता है. ठीक है, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. इस क्वेश्चन में भी आपको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही डिस्कस करना है. Okay, so difficulty in the separation of lanthanides, this is the very first consequence कि lanthanide contraction होने की वजह से क्या होता है. ठीक है, कि आप separate नहीं कर पाते हो different lanthanides को. Since there is only a small change in the ionic radii of the lanthanides, their chemical properties are the same, so इसीलिए उनको सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. एटॉमिक साइज हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या होता है एटॉमिक साइज के साथ. द थर्ड ट्रांजिशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एटम ऑफ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, राइट, कि 4D 5D का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इंक्रीजेज फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटीशियम. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लैंथेनम से ल्यूटीशियम इंक्रीज करती है. इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये आप एक बार रीड कर लीजिए. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज. ओके, एंड दिस इज ऑलमोस्ट डन. वी आर ऑलमोस्ट डन फॉर द डे. हमने बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ये चैप्टर ऐसे डिस्कस किया है कि आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं. ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपसे यही पूछा जाने वाला है. एंड आई बिलीव दैट यू हैड फन, यू अंडरस्टूड इट. हमने जल्दी भी इसलिए कवर कर दिया बिकॉज इट वॉज जस्ट अ रिविजन पार्ट, राइट, या फटाफट से सारी चीज़ें देख लो. आई बिलीव इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू. दैट इज़ इट फॉर द डे एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.